Hello, youngsters. How are you? Hope you all are good and all are fine. Okay, so today we are going to deal with biology. Okay, so today's topic is of ICC class 10th bio. Okay, that is chapter 3 genetics. Okay, some basic fundamentals. So today we're going to see about genetics, what are genes. Okay, so this is a chapter in your bio, okay, which is very interesting. So if you didn't saw the previous videos of bio, that is the chromosomes, okay, structure of chromosomes, so go and watch that as well. Okay, and because that is your base. Okay, if you know that chapter, so you have an idea, you automatically have an idea of this chapter, okay, by yourself, if you study it by yourself at once. Okay, so if you didn't study the chapter chromosome, so go and watch that as well. I'm already posted that video, so if you didn't watch, so watch that as well. Okay, so yeah, let's see what is genetics. Basically genetics, no, we are going to see genes, okay, but the study of gene is known as genetics. Okay, so today we're going to see with today we're going to deal with genes. Okay, gene is a unit of heredity. Okay, so um, be- uh, without wasting no more time, let's get start with our video. Okay, so this is an introductory part. Okay, so let me read it for you. So whenever a toddler is born, the family members usually start comparing the child's appearance to whom he she resembles more. Means you even saw in your family, an infant takes place in your family. So what your granny, what your grandpa, what they used to said, that he or she went to his or her mother or his or her uncle, like this. Okay, इफ़ आई सेड इन हिंदी, तो इस तरीके से कहते हैं, ये तो अपनी मम्मी पे गए हैं, ओके, ये तो अपनी पापा पे गए हैं, लाइक दिस दे यूज टू कंपेयर दैट इन्फेंट विद द पेरेंट्स. ओके, है ना, ऐसा होता नहीं है कि इसकी नाक इसकी मम्मी की तरह गई है, इसके आँखें इसके पापा की तरह गई हैं, इसके होठ इसके पापा की तरह गए हैं, लाइक दिस our granny and grandpa used to say. Okay, or the other fellow of the family. Okay, इस तरीके से लोग कहते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं इन्फेंट को, एक वर्ल्ड को पेरेंट्स से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वो टॉडलर किस पे गया है, अपने पापा पे गया है ना. तो ऐसा क्यों होता है, मीन्स हम अलग क्यों नहीं हो सकते. लाइक अ ह्यूमन बेबी कांट बी अ लॉयन बेबी. वाई? ओके, a human baby can't be a calf. ऐसा क्यों नहीं हो सकता? Why it cannot happen कि एक ह्यूमन का बेबी काल्फ का मतलब एक काल्फ हो. काल्फ मीन्स अ बेबी ऑफ काउ. तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मतलब ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होता है, राइट. ही और शी इज़ अ ह्यूमन, बट एंड अ काल्फ बेबी इज़ अ काल्फ, सॉरी, काउ बेबी अ काल्फ. ओके, like this, a doggy baby is a doggy. Okay, a buffalo baby is a buffalo. Okay, like this. Why it has happened means just जो उसकी मदर या उसके पेरेंट्स उसी की तरह बेबी क्यों दिखता है, ऐसा क्यों है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ हेरिडिटी. किसकी वजह से? जीन्स की वजह से है. ओके, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफिस में जाते हैं. ओके, सो ये किसका ऑल दिस ऑल्दो अ मैटर ऑफ चांस. ये भले एक चांस मतलब चांस होता है, लाइक ज़रूरी नहीं है कि फादर की तरह वो बच्चा रिजम्बल करे. वो अंकल की तरह भी कर सकता है, वो अपनी ग्रैनी की तरह भी कर सकता है. ओके, तो ये एक चांस होता है, ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो एक इन्फेंट होता है, वो अपने पेरेंट्स पर ही जाता है. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाई अ वाइल्ड लुकिंग लाइक his or her parents, why he went to his parents, what is the matter behind it. The matter is about gene. Now what is this gene, let's find out. Okay, so I hope this is clear to you. Now let's see what is heredity. Heredity is nothing but the transfer of genetically characteristics from the parents to the offspring. Means parents से offspring में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाती हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं. लाइक सपोज एक फादर का सन है,
तो उसकी कुछ ना कुछ एक दो एक्टिविटी तो ऐसी होंगी जो उसके फादर करते हैं। ओके, ऑब्वियसली दिस हैपेंस, दैट्स वाई आवर ओल्ड पीपल सेड ये अपने पापा पे गए हैं या ये अपनी मम्मी पे गए। क्यों ऐसा होता है, क्यों जाते हैं हम अपनी मम्मी पापा पर? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ जीन। ओके, जीन की वजह से होता है ये। हमारे पेरेंट्स के जीन हम में जाते हैं। ओके, आवर पेरेंट्स जीन वेंट टू इट्स इन्फेंट। ओके, हिज और हर इन्फेंट, एक इन्फेंट में जाते हैं उसके पेरेंट्स के जीन। ओके, दैट्स वाई इट हैपेंस। जो भी एक्टिविटीज़ पेरेंट्स की होती हैं छोटे पे, वही एक्टिविटीज़ वो इन्फेंट करता है। ओके, सो हम अगर डिफाइन करें हेरिडिटी को तो इट इज़ नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मीन्स एन इन्फेंट, एक छोटा सा बच्चा। ओके, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। एक और वे से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इससे क्या तात्पर्य है मेरा, मतलब इससे क्या मीनिंग है मेरा? सपोज इट मीन्स द यंग बेबी लुक लाइक देयर पेरेंट्स एज आई टोल्ड यू राइट नाउ। ओके, अभी मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे जो कैट होती है वो एक कैट को ही, एक किटन को ही प्रोड्यूस करेगी, नॉट अ डॉग। कैट का बेबी एक किटन ही होगा। ओके, किटन मीन्स द बेबी ऑफ कैट। ओके, कैट का बेबी एक कैट ही होगा, कैट की तरह ही लगेगा। जो उसकी अपीयरेंस होगी वो कैट की तरह ही होंगी, किसी डॉग की तरह नहीं होंगी। ऐसा क्यों होता है? वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, इजंट इट? दिस इज बिकॉज द थिंग। ओके, हेरिडिटी क्या है? ये ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, एंड समवेयर दिस इज द रीज़न वाई अ डॉग बेबी लुक्स लाइक अ डॉग ओनली, नॉट लाइक ह्यूमन और कैट और अदर एनिमल्स। ओके, दिस इज द चांस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी और जीन की वजह से ये होता है। ओके, सो आई होप हेरिडिटी इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी हु वाज द फादर ऑफ हेरिडिटी, मीन्स कौन थे हेरिडिटी के फादर? ओके, सो ग्रेगोर मेंडेल, he was the father of heredity and he described some laws of heredity. Okay, so the basic laws of heredity were first formed during the mid 1800s by an Austrian botanist monk named Gregor Mendel. Gregor Mendel एक monk थे। Who was he? एक monk थे, he was a monk। एंड सो ग्रेगोर मेंडेल कौन थे? एक मॉन्क थे। एक मॉन्क मीन्स पुजारी, इज इन हिंदी वी यूज टू से। ओके, जो कि पीजेंट फैमिली से थे। पीजेंट फैमिली मीन्स फार्मिंग फैमिली, जो भी हमारे फार्मिंग मतलब जो भी ज़्यादा जिससे ज़्यादा फैसिलिटी जिसके पास नहीं होती है। ओके, सो ही मीन्स ही वॉज born in 1822 to 1844। ओके, 1822 to 1844 इनका जन्म रहा और इन्होंने मेंडेल्स लॉ दिए थे, इनहेरिटेंस के मेंडेल्स लॉ, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे लास्ट में। बहुत मैंडेटरी लॉज हैं, सो होप यू सॉ दैट। ओके, सो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, लॉ में जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं मेंडेल के, उसमें सब कुछ दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा तभी। अभी बस इतना जान लीजिए ये कौन थे। इन्होंने लॉ दिए थे, किसके बेसिक लॉ दिए थे? हेरिडिटी के बेसिक लॉ दिए थे। ओके, और एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट मॉन्क हैं। ओके, और ये जो हैं ये इन्होंने मतलब इनकी एजुकेशन क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या पढ़ा था? मैथमेटिक्स एंड साइंस में इनकी ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ mathematics and science. That's it. Okay, now this is all about Mendel. Okay, Gregor Mendel, इनका full name है Gregor Mendel. So this is very important name. Hope you learn it. Okay, because this can be asking you questions, 1 mark question, that who was the father of heredity, or who was the father of genetics? Sorry, who was the father of genetics? So Gregor Mendel was the father of genetics. इन्होंने ही genetics का निर्माण किया था। Okay, so this is all about Gregor Mendel. Now let's see, this fellow is known as the Gregor Mendel, as I told you earlier. Now let's see what is genetics. अब genetics क्या होता है? genetics कुछ नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया,
इट इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की स्टडी होती है ये, ठीक है। जितनी भी हेरिडिटी की स्टडी हम करते हैं वो सब क्या होता है, जेनेटिक्स होती है। हेरिडिटी क्या है, अभी मैंने बताया, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी, इजंट इट। तो जो भी स्टडी होती है वो सब किस में होती है, जेनेटिक्स में होती है, हेरिडिटी की स्टडी बता रहे हैं, ओके। एंड हेरिडिटी इज़ द पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एज आई टोल्ड यू। क्या होता है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होना, ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स में पास नहीं होंगे, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होंगे, ओके। रॉन्ग मत राइट कर देना। नेक्स्ट है, इन्होंने ये जो जेनेटिक्स है वो किसने पढ़ा था फर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली मेंडेल ने, ओके। ग्रेगोर मेंडेल ने इसकी स्टडी की थी, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। दिस इज ओनली द रीजन बिकॉज ही इन्वेंटेड दिस जेनेटिक्स, ओके। ग्रेगोर मेंडेल, दिस फेलो। So this is genetics. I hope this is clear to you. What is genetics? Okay. So अगर genetics आए लिखने को तो आप कैसे लिखेंगे? Genetics is the study of heredity, that is the transfer of body features from offspring to from parents to offspring. That's it. Very simple. है ना? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बिहेवियर है, ओके, तो जो फेशियल फीचर्स हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना, उनका ट्रांसफ़र होना, इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, इसे हम जीन कहते हैं, इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। ना पॉपुलेशंस में वेरिएशंस, अब व्हाट इज दिस वेरिएशंस, ओके। लाइक कोई भी इंडिविजुअल होता है, ओके, किसी भी स्पीसीज़ का, उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, ओके। कुछ अब your father and you are not looking like exactly like your father, okay, you are not looking like exactly your father, okay। अपने फादर की तरह आप एग्जैक्टली नहीं लगते हैं, है ना, कुछ डिफरेंसेस हैं। might your nose is slightly higher or slightly it is short to your father, might your eyes are different, means कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो ज़रूर रहेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट फादर और सन ऐसा नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ना। कुछ लोग कह देते हैं कि ये अपने पापा की तरह हैं, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल पापा की तरह हैं, ऐसा तो नहीं है। जैसे अगर आपको और आपके फादर को दोनों खड़ा कर दिया जाए तो कोई पहचान ही नहीं पाए कौन सन है और कौन फादर है, ऐसा तो नहीं होगा, इज़न्ट इट। कुछ डिफरेंस तो रहते हैं, तो इससे क्या होता है, यही हमारे कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं पॉपुलेशन में, okay। So human beings as a species share many identify the species Homo sapiens। हम humans किस में आते हैं, Homo sapiens में, okay। Yet the various races or tribes look different in several features, even within the same race or tribe the individual members in the population show differences। चाहे वो दूसरे पीपल्स हो, चाहे अपना एक ट्रेड हो, अपना ट्रेड का मतलब है फादर एंड सन का ट्रेड हो, या फिर कोई दूसरा ट्रेड हो, लाइक दूसरा इंडिविजुअल, कोई दूसरा इंडिविजुअल आए और हम आए, तो हम दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, इजंट इट। सो यही हमारे वेरिएशंस होते हैं, ओके। सो further within a family member shows differences in body features. These small differences among the individuals of the same species is known as variations। Variations क्या होते हैं, the small differences between you and the other fellow, okay, is known as the variations। कुछ variations का मतलब ही यही होता है, differences, okay। कुछ differences आना, like we are the Homo sapiens, okay। हम लोगों का tribe same है, okay। हम लोग बिलोंग एक ही फैमिलीज करते हैं, होमो सेपियंस, बट येट वी बिलोंग टू आवर सेम फैमिली, येट वी आर हैविंग द डिफरेंसेस, ओके। सपोज सम आर टॉल, सम आर शॉर्ट, ओके, सम आर हैविंग द like white color, okay, their complexion is slightly better, and some are having the deep complexion। So this is nothing but the variations of them in the population, okay। In the world all population is not same, this is the truth, okay। पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशंस हैं वो सेम तो है नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, कोई ड्रॉप है, कोई बहुत टॉल है, ओके, एंड कोई ब्लैक है, ओके, कोई वाइट है बिल्कुल, और किसी के फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हैं, किसी के फेशियल फीचर्स बहुत बुरे हैं, तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ओके। सॉरी,
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। ओके, कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस इंडिविजुअल में, ओके, ह्यूमंस में, ओके, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस। सो दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टर एंड ट्रेड्स। व्हाट इज कैरेक्टर एंड ट्रेड? अभी मैंने आपको ट्रेड कहा था। नाउ ये ट्रेड होता क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर एंड व्हाट इज ट्रेड? दोनों सेम है, ओके। कैरेक्टर इज द हेरिटेबल ट्रेड varies among individual, and trait is the variant for a character। मीन्स जो कैरेक्टर है होता है वो क्या होता है, एक इनहेरिटेबल फीचर होता है ऑर्गेनिज्म का, ओके। और जो हमारा ट्रेड होता है वो उसी कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कैरेक्टर में जैसे आई कलर है, ओके, एंड ट्रेड में ब्राउन ब्लैक ब्लॉन्ड हेयर है, ओके। सो जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर हमारा क्या होता है, वो हेरिटेबल होता है, ओके। हेरिटेबल मतलब जीन्स के थ्रू आता है, ओके। लाइक आई कलर है तो जैसे आपके पेरेंट्स का आई कलर होगा वैसे ही आपके अंदर होगा। ऐसा नहीं योर पेरेंट्स आर हैविंग ब्राउन कलर एंड यू आर हैविंग द ब्लू कलर, इट इज़ बिकॉज ऑफ चांस, समवे इट ऑल्सो हैपन। ये होता है कुछ जगह, ओके। ब्लू आइज कुछ बहुत ही माइन्यूट केसेस होते हैं, जैसे कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, ओके, तो उनकी ब्लू आइज़ हैं, बट उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी ब्लू आइज़ नहीं थी। तो ये क्यों है हुआ? ये एक चांस की वजह से हुआ। और ये ब्लू आइज़ होती क्यों है? लेट मी टेल यू। आइज़ में जो होता है वो मेलानिन मतलब होता है, आइज़ में भी मेलानिन होता है जो उसे कलर प्रोड्यूस करता है। किसी में ज़्यादा मेलानिन है, अगर स्किन में किसी की ज़्यादा मेलानिन है तो उसकी स्किन ब्लैक होगी, इज़न्ट उतनी डार्कर होगी। अगर उसका मेलानिन कम है तो उसकी स्किन उतनी लाइटर होगी। सेम आइस में होता है, आइस में भी यही सेम होता है। जिसका मेलानिन जितना ज़्यादा होता है उसकी आइस उतनी ब्लैक और ब्राउन होती है। अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा मेलानिन है तो उसकी आइस ब्लैक होंगी, अगर थोड़ा सा स्लाइटली कम है तो उसकी ब्राउन होगी, और बिल्कुल ही कम है सॉरी बिल्कुल ही कम है तो उसकी ब्लू आइज़ होती हैं। ये मेलानिन की वजह से होता है, ओके। तो ये तो हमारा कैरेक्टर हो गया। अब ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर में जो वेरिएंट आते हैं, जैसे ब्राउन हेयर है, ब्लैक हेयर है, ब्लॉन्ड हेयर है, ये सब हमारे ट्रेट होते हैं, ओके। सो जो हमारे कैरेक्टर होता है वो हमारे किससे आते हैं? एज आई टोल्ड यू, पेरेंट्स से आते हैं, ओके। हमारे इनहेरिटेंस होते हैं, ओके। और जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो जो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल हो सकते हैं, ओके। वो हमारे वेरी कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पेरेंट्स के कलर ब्लैक, हेयर कलर ब्लैक है तो हमारा डिफरेंट कलर हो सकता है। बट जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो हमारे इनहेरिटेंस से ही होते हैं, मतलब हमारी हेरिडिटी के थ्रू होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स का होगा वैसे ही हमारे कलर होंगे। बट कभी कभी चांस ऐसे हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ओके। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लाइक या टंग रोलिंग आपके पास है, आपका एक आएगा आगे टंग रोलिंग का। तो कुछ लोग हमारे टंग रोलिंग कैसे करते हैं? यू शेप में कर लेते हैं, ओके। और कुछ लोग जो होते हैं वो टंग रोलिंग करते ही नहीं हैं। तो ये दो ट्रेड हुए, ओके। अब ये ट्रेड है, ये किसी पेरेंट्स से तो आए नहीं, जैसे पेरेंट्स से सीख के आए हो आप लोग को खुद आ गए ये ट्रेड। पर जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं टंग रोलिंग का, ओके, वो आपके पेरेंट्स से इनहेरिटेंस होता है, ओके। तो दिस इज कैरेक्टर एंड ट्रेड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई भी इनहेरिटेबल फीचर जो होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो हमारा कैरेक्टर होता है, और जो भी हमारे कैरेक्टर का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसे हम ट्रेड कहते हैं, ओके। दिस कैरेक्टर एंड ट्रेड, या दिस इज द इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। that's what I was telling you, okay। We inherit thousands of characters from our parents, father and mother, who in turn had inherited them from their parents. Thus the family members, brothers, sisters, cousins tend to resemble one another। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीन्स की वजह से होता है ना। जैसे हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होंगे वैसे हमारे फादर और मदर होंगे, ओके। और वैसे हम होंगे वैसे हमारे कजिन्स होंगे। ये होता है, कैरेक्टर होते हैं ये, ठीक है। जो किससे आते हैं? हेरिडिटी से आते हैं, हेरिडिटी के थ्रू आते हैं। और जो ट्रेड होता है वो हेरिडिटी के थ्रू नहीं आता। जैसे कैरेक्टर हम देख लेते हैं, कलर ऑफ द आइज़।
इट कैन बी ब्राउन और ब्लू। ओके, हेयर शेप हो जाता है, कर्ली हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, आईब्राउज हो जाती हैं, वो हैवी होती हैं, बुशी होती हैं, थिन होती हैं। हेयर्स ऑन द मिडिल जॉइंट ऑफ फिंगर्स दैट कैन बी ग्रोथ और नो ग्रोथ, है ना। ग्रोथ भी हो सकती है मिडिल जॉइंट में, लाइक मिडिल जॉइंट में मेरी हेयर ग्रोथ है, मेरे फादर की ग्रोथ है ना। तो ये जीन्स की वजह से हुआ है। ओके, एंड कलर विजन होता है, किसी का नॉर्मल होता है, कोई रेड ग्रीन कलर देख सकता है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है किसी के अंदर। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? उस जो जिसको भी ब्लाइंडनेस होगी, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, उसे रेड और ग्रीन को छोड़ के सारे कलर्स दिखेंगे। रेड और ग्रीन की जगह कौन सा कलर दिखेगा? उन्हें ब्लैक और वाइट विजन होगा। ओके, टंग रोलिंग का जैसे अभी मैंने बताया, कुछ लोग यू शेप में करते हैं। ओके, और कुछ लोग हमें स्ट्रेट ही कर लेते हैं टंग रोलिंग का। ऐसे ही बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं इन्हें, कैरेक्टर्स और ट्रेट को। ओके, सो दिस इज ऑल इनहेरिटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स। ओहो, ये है पार्ट क्रोमोसोम्स। मैंने जैसे बताया था आपको क्रोमोसोम्स के बारे में, इसमें भी बताया जाएगा, इसमें भी डिस्क्रिप्शन है क्रोमोसोम्स के बारे में। ओके, now you have to tell me what is chromosomes, what are chromosomes, children? Are in previous chapter I only told you what are chromosomes. Chromosomes are the carriers of heredity. Okay, chromosomes are the condensed form of chromatin fibers. Chromatin fibers होते थे, उनके condensed form होते हैं chromosomes. ओके, सेल के अंदर जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स। जब वो कंडेंस शॉर्ट हो जाते हैं तो उन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। वेरी सिंपल। कितने होते हैं ये नंबर? 23 पेयर्स में होते हैं, 46 टोटल होते हैं। 23 किसके अंदर होंगे? नाउ यू डोंट नो द आंसर। 46 आर द टोटल क्रोमोसोम्स। ओके, एंड 23 आर इन द पेयर्स। 23 आर इन फीमेल एंड 23 आर इन मेल। ओके, पेयर्स में होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ना कुछ एनिमल्स की क्रोमोसोम्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि एस्करीज होता है। एस्करीज एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके हमारे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली 2 क्रोमोसोम्स। अनियन जो हमारा प्लांट है उसमें कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 16। मेज में 20 क्रोमोसोम्स होते हैं, लॉयन में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं, टाइगर में भी 38 क्रोमोसोम्स होते हैं, डोमेस्टिक कैट में भी 38 क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ कैन यू टेल मी लॉयन, टाइगर, जो डोमेस्टिक कैट में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों हैं? चलो, लॉयन और टाइगर की तो समझ आती है, दोनों शेप में ठीक हैं, एक बराबर हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली तो सेम है ना। दोनों बड़े भी हैं, वाइड भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, सेम कलर है लगभग, है ना। लॉयन टाइगर की तो समझ आता है, बट वाई डोमेस्टिक कैट? Cat is very small while the lion and tigers are very huge, isn't it? Why they are having the same color of same number of chromosomes? Why it is so? This is because they thrive. ये तीनों जो लॉयन, कैट और टाइगर है, ये तीनों एक ही फैमिली से आते हैं, ठीक है। ये इन तीनों की एक ही फैमिली है, इसलिए इनका सेम क्रोमोसोम है। ओके, दिस कैन बी आस्क इन योर क्वेश्चंस, सो मेक श्योर यू लर्न इट। ओके, क्यों होता है ये? क्योंकि ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई दे आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, 38, 38, 38। माउस में हमारे 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, गोरिल्ला में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब देखिए, गोरिल्ला, ह्यूमन से गोरिल्ला मीन्स ह्यूमन्स एंड एप्स बोथ आर सेम, लगभग तो सेम है ना। मतलब ह्यूमन्स किससे बने? ऑब्वियसली द अर्ली ह्यूमन्स जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कौन थे? Obviously they were the apes, वानर थे वो, है ना। they were the apes means बंदर, monkey. Okay, so because they are be humans and those monkeys, we both comes in same class, that's why we are having the approximately same chromosomes, 48, 46। गोरिल्ला में 2 chromosomes एक्स्ट्रा होते हैं हम humans से, we are having 46 chromosomes and gorilla are having 48 chromosomes. Same in potato. Now potato is not in our family. Okay, potato is a vegetable, but we are the human beings. Okay, monkey is having 54 approximately. We are having the same. Gorilla, we humans and monkey are having the same. Dogs are having 78 and chickens are also having the 78 chromosomes. Okay, सो बस इतना याद रखिए, क्रोमोसोम्स हम ह्यूमंस में कितने होते हैं? 33 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, बस इतना याद रखिए हम लोगों में, ठीक है। क्रोमोसोम्स होता है। अब क्रोमोसोम्स क्या? डू यू रिमेंबर एनीथिंग? व्हाट इज सेंट्रोमियर?
What are sister chromatin? Do you remember what is this? Centromere is the part which divides the two sister chromatins, and two sister chromatins are the two parts of the chromosomes. Okay, the X and Y are the sex chromosomes. Okay, and rest of are the which chromosomes? Autosomes. Okay, rest are the autosomes, and last two are the sex chromosomes, which determine the child will be the girl or the boy. This is determined by this. Okay, now this is next is now इसमें बताना है कि when will do we recognize that, how doctors recognize that this fellow is means जब when a baby, an infant is in the womb of his or her mother. So how doctors recognize previously that this will be a girl or this will be a boy? How do they how they did so? What is the matter behind it? Okay, how did they do so? क्यों, कैसे हो पाता है ऐसे? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स को देख लेते हैं कि किस तरीके के हमारे क्रोमोसोम्स मीन्स किस तरीके के हमारे सेक्स सेल्स ऐड हुए हैं और किस तरीके का ऑर्गेनिज्म ने बर्थ लिया है. मीन्स इफ when the sperm with X chromosomes fuses with the egg, the child will be XX type of sex chromosomes, which will be a girl. Means अगर X type, दो टाइप्स की सेक्स सेल्स होते हैं, एक एक्स सेक्स सेल होता है ह्यूमंस में, एक बाई सेक्स सेल होता है, दोनों मेल और फीमेल में. जब एक्स क्रोमोसोम्स मेल से आके फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में, मतलब दोनों सेम क्रोमोसोम्स हैं, दोनों में जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो वो क्या होगा, एक गर्ल होगी. वहीं जहाँ पर जो बाई क्रोमोसोम बाई स्पर्म होता है हमारा, वो फ्यूज़ होता है, जो बाई स्पर्म होता है वो एक्स के साथ फ्यूज़ होता है तो एक्स बाई फॉर्म करता है, और जो कि हमारा क्या होंगे, बॉय होगा. इसी से हम रिकोगनाइज कर पाते हैं कि हमारे व्हाट विल बी द गर्ल एंड व्हाट विल बी द boy. Okay, this is the reason. When the sperm with X chromosome fuses with the egg, the child will have XX type of sex chromosomes, and this will be a girl child. Okay, वो क्या होगी, गर्ल चाइल्ड होगी. और जो हमारा एक्स बाई जो होंगे, ओके, क्रोमोसोम्स जब वो फ्यूज़ होंगे तो वो हमारा एक बॉय होगा. ओके, सो जो हमारे लास्ट के टू होते हैं, 23 पेयर जो होता है वो रिकोगनाइज करता है कि दिस विल बी अ फीमेल और दिस विल बी अ मेल. जब एक्स एक्स दोनों सेम टाइप्स के क्रोमोसोम्स फ्यूज़ होंगे एक साथ तो वो फीमेल होगी. जब एक्स और वाई दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स फ्यूज़ होंगे एक साथ तो वो एक मेल मतलब बॉय होगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि जो हमारा एक्स एग होता है वो एक्स बैरिंग जो एक्स ले जाता है स्पर्म उसके साथ फ्यूज़ होता है, तो जो कॉम्बिनेशन रिजल्ट होगा वो एक्स एक्स होगा, मतलब एक डॉटर होगी. ओके, और जो एग एक्स होता है वो बाई बेयरिंग स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है तो एक्स बाई रिजल्टेंट होंगे. ओके, एक्स बाई रिजल्ट निकलेगा जो कि एक सन होगा. ठीक है, दिस इज क्लियर टू यू. इसी से हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो एक सन होगा या बॉय. नेक्स्ट इज व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. Now this is very easy. What is homologous chromosomes? Homologous, a pair of corresponding chromosomes of the same shape and size are obtained from each parent. Means एक मेल से एक फीमेल से सेम शेप का सेम साइज का जो क्रोमोसोम निकलता है, जो होता है सेम शेप हो उसकी, सेम साइज हो, एक मेल से एक फीमेल से, उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. होमो मीन्स सेम, ओके, और लोगस मीन्स द शेप. ओके, सेम शेप का सेम साइज़ का जो हमारा क्रोमोसोम दोनों पेरेंट, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से निकलता है उसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं. द टू मेन कैटेगरीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर द ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. व्हाट इज ऑटोसोम्स? जो हमारे 1 से लेके जो हमारे 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, हमें पता है हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जो हमारे 1 से लेके 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं. बट जो लास्ट 23rd पेयर होता है जिससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं दैट एन इन्फेंट विल बी अ चाइल्ड और अ बॉय, एंड द चाइल्ड विल बी अ बॉय और अ गर्ल, जिससे हम रिकोगनाइज कर पाते हैं, वो हमारा लास्ट क्रोमोसोम होता है जिससे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम दैट विल बी द लास्ट क्रोमोसोम. एंड
ड्यू टू दिस वी रिकॉग्नाइज दैट दिस इन्फेंट विल बी अ गर्ल और अ बॉय. ठीक है. सो दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ नहीं होते, सेम शेप के सेम साइज के दो करस्पॉन्डिंग जो पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जो कि एक फादर से आएगा एक मदर से आएगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे. दैट्स वेरी सिंपल, वेरी 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 ईजी. ओके, ये टॉपिक्स बहुत ईजी हैं, बट इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे वो हार्ड होंगे. देखिए, दिस इज़ अ बॉय एंड दिस इज़ अ गर्ल. वाई दिस फेलो इज़ अ बॉय एंड वाई दिस फेलो इज़ अ गर्ल? वाई इट इज़ सो? This is because of the combination of the sex chromosomes, isn't it? So let's see what are chromosomes. Actually, I already told you what are chromosomes. Not yet? Okay, let me tell you what are chromosomes. Or else you know what are chromosomes, I think. Okay, so just wait for a while, children. Let it drink water. सो क्रोमोसोम कुछ नहीं होते, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है. अब वो हमें कब दिखने लगता है? जब वो शॉर्ट और कंडेंस हो जाते हैं. ओके, कब होता है? सेल डिवीज़न में. सेल डिवीज़न के थ्रू वो दिखने लगता है जब वो शॉर्ट और कंडेंस हो जाते हैं. ओके, दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एज वेल एज इन एनिमल सेल. दोनों सेल्स में होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में होता है. ओके, और इन्हें हम क्या कहते हैं? हेरिडेटरी यूनिट्स भी कहते हैं. इन्हें क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज द हेरिडिटी यूनिट्स. हेरिडेटरी यूनिट्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ही हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक. ओके, वो जीन्स हमारे इसी की वजह से होते हैं. ओके, जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है यही क्रोमोसोम्स ले जाते हैं वन जीन टू अनदर जीन. ओके, मीन्स वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ओके, दैट्स वाई दे आर नोन एज द कैरियर्स ऑफ जीन्स. दिस इज क्रोमोसोम्स, यही क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, सिंपल भाषा में कहें तो ये होता है दे आर द कंडेंस फॉर्म. कंडेंस फॉर्म होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स के. ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होता है? मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था क्रोमोसोम वाले चैप्टर में, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहाँ होते हैं? सेल के अंदर होते हैं. ओके, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के में होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं. ओके, यही हमारे क्या कहलाते हैं? कैरियर्स ऑफ जीन्स. क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम हो गया. वेरी इजी, दिस इज द क्रोमोसोम. ओके, नाउ व्हाट इज दिस पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमेयर. ठीक है, ये हमारी सिस्टर क्रोमैटिन होती हैं. ओके, टू सिस्टर क्रोमैटिन्स. दैट्स इट, वेरी इजी. ओके, नेक्स्ट इज जीन्स. व्हाट इज़ जीन? हमने क्रोमोसोम में भी पढ़ा है जीन क्या होता है, बट एक बार फिर से देख लेते हैं व्हाट आर जीन्स. सो जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जीन क्या होता है? हेरिडिटी की बेसिक यूनिट होती है. ओके, जो कि क्या करती है? इंफॉर्मेशन बिल्ड करती है. ओके, मीन्स जो हमारा जितने भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाती है. वो कौन सब होल्ड करता है? जीन ही होल्ड करती है. मीन्स जीन इज द थिंग विच पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. ओके, द वर्ड जीन वॉज क्वाइंड बाई जेनेटिस्ट विलियम जॉन सीन इन 1909. ओके, 1909 में एक जेनेटिस्ट मीन्स द साइंटिस्ट ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जेनेटिक की स्टडी की होती है उन्हें हम जेनेटिस्ट कहते हैं. जिनका नेम था विलियम जोनासीन. इन्होंने जीन शब्द रखा था. ओके, जीन शब्द को क्वाइन किया था. जीन क्या होता है? बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की. दिस इज द जीन ओनली दिस. ओके, 2 हेलिक्स है ये, है ना. नो नेक्स्ट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से सब बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये अच्छे से पढ़ लिया तो सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया. जीन्स एंड द एलील्स. व्हाट आर जीन्स एंड द एलील्स? देखिए, जो टंग रोलिंग वाला था ये मैं बताने जा रहा था. ये होगा टंग रोलिंग का. सुनिए ध्यान से. नॉर्मली एवरी जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स. हर जीन के पास 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं कैरेक्टर्स के लिए. ओके, दीज अल्टरनेटिव फॉर्म्स हमारे क्या कहलाते हैं? एलील्स होते हैं. मीन्स जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं. ओके, हमारे जीन्स के पास जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं कैरेक्टर के लिए
डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो हमारी जीन्स कहलाते हैं. ओके, एंड लेट टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट. इन द कैरेक्टर ऑफ टंग रोलिंग का अगर हम कैरेक्टर लें, ये हमारे अंदर एक कैरेक्टर ही तो होता है टंग रोलिंग का. तो दो टाइप्स के प्रोजेक्टिंग होता है. एक तो प्रोजेक्टिंग द टंग आउट ऑफ द माउथ, एक तो बाहर करना, जैसे कि ये कर रहे हैं, ये लड़की कर रही है आगे बाहर कर रही है अपनी जीभ को. एक ये होते हैं जैसे कि रोल करते हैं. ओके, दिस बॉय इज डूइंग. ओके, तो दो टाइप की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. आइदर वन कैन टेक आउट हिज और हर टंग और वन कैन रोल हिज और हर टंग. ओके, दो टाइप्स के हमारे जो कैरेक्टर्स आते हैं यहाँ पे. ओके, दे आर टू पॉसिबिलिटीज़, दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. या तो एक रोल कर सकता है टंग को, या तो एक बाहर निकाल सकता है टंग को. ओके, या तो एक रोल कर सकता है टंग को, या तो एक रोल नहीं कर सकता है टंग को, या फिर बाहर निकाल सकता है टंग को. और इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं. जीन्स का एलील्स कहते हैं, क्योंकि एक रोल कर सकता है टंग को और एक रोल नहीं कर सकता है. दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स आ गए ना यहाँ पर. वन कैन रोल द टंग और वन कैन नॉट, एंड दिस इज नोन एज द जीन ओनली, and this is known as the allele only. Okay, so this is genes and alleles. Okay, so the alternative forms of gene, okay, that is the alleles. As I told you right now that people only have two characters, the one which can roll the tongue and one which cannot. Okay, इसलिए दो एलील्स होते हैं जीन्स के. एक जो टंग है उसे रोल कर सकता है, एक टंग को रोल नहीं कर सकता. तो यही हमारे जीन्स और उसके एलील्स हो गए. और जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके, द थ्री सिचुएशंस pertaining to any pair of genes, for example in tongue rolling, can be as follows. RR, both dominant, tongue roller, or capital R, small r, one dominant or one recessive, tongue roller. मीन्स हमने दो कैरेक्टर्स लिए. एक तो दोनों कैपिटल आर थे जो कि टंग रोलर थे. ओके, दोनों डोमिनेंट थे. और एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर लिया, जिसमें जो कैपिटल आर है वो एक डोमिनेंट है और जिसमें जो स्मॉल आर है वो रेसेसिव है. ये भी टंग रोलर है. और एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये है स्मॉल आर लिए, मीन्स दोनों रेसेसिव हैं. ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम अबव एग्जाम्पल दैट द टंग रोलर्स हैव टू काइंड्स ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, स्मॉल कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर. whereas non-roller only have one genetic constitution, that is the small r. means tongue roller जो है वो दोनों, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, कैपिटल आर और जो हमारे वन डोमिनेंट और वन रेसेसिव वाला है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला है. ओके, सो द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड द जीनोटाइप. ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ओके, इसे हम जीनोटाइप कहते हैं. और जो एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं उसे हम फिनोटाइप कहते हैं. ओके, अगर हम स्मॉल में समझे तो जीनोटाइप इज द सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द फिनोटाइप इज द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी जेनेटिकली कंट्रोल. फिनोटाइप जेनेटिकली कंट्रोल हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, पर जीनोटाइप जो होते हैं वो एक सेट होता है जीन का जो कि सेल ऑर्गेनिज्म के सेल पर प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर दो टाइप्स के जीनोटाइप्स होते हैं. दो टाइप्स के कौन कौन से जीनोटाइप होते हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट, ओके, एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होते हैं? जिसमें दोनों पेयर सेम हो, जैसे कि कैपिटल आर तो दोनों सेम हुए ना, तो इसलिए हम इन्हें होमोजाइगस कहते हैं. मीन्स जिनके सिमिलर पेयर हो. और हेट्रोजाइगस एक कैपिटल आर हुआ एक स्मॉल आर हुआ, मीन्स एक हेट्रो डिफरेंट जाइगस मीन्स पेयर, जिसके डिफरेंट पेयर्स हों उन्हें हम कैपिटल आर स्मॉल आर कहते हैं. ओके, जो हमारा जीनोटाइप है नॉन रोलर का वो सिर्फ एक सिंगल हेट्रोजाइगस रिसेसिव है स्मॉल आर का. ठीक है, तो आई होप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर क्लियर टू यू. ओके, तो नेक्स्ट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, tongue rolling, an example of inheritance. This is also an example of inheritance. So you can see in the figure 3.4, this is the figure 3.4. It illustrates a family chart of two parents and their three children, again illustrating the trait of tongue rolling. यहाँ पे अगेन जो टंग रोलिंग का ट्रेड बताया गया है. तो यहाँ पे एक मदर है
एक फादर, दोनों रोलर हैं, मीन्स दोनों कैसे अपनी टंग को कर सकते हैं, रोल करते हैं। और उनके 3 चिल्ड्रन हैं। द फर्स्ट वन इज़ नॉन रोलर, जो रोल नहीं करता है, सेकेंड वन इज़ रोलर एंड थर्ड वन इज़ ऑल्सो रोलर। ओके, सो जो हमारा ये जो सर्कल है, ओके, फैमिली चार्ट में देखिए जो मेल्स हैं वो हमारे स्क्वायर से दिखाए गए हैं और फीमेल है वो हमारे सर्कल से। ये जो रेड लाइन से जितना ये जो मैंने मार्क किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आगे क्वेश्चंस आते हैं इसके, ओके, इस चार्ट के क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये याद रखना है कि मेल्स को किससे शो करते हैं, स्क्वायर से शो करते हैं। एज यू कैन सी मेल्स आर शोन बाय स्क्वायर एंड फीमेल्स शोन बाय सर्कल्स। ओके, सो बोथ फादर एंड मदर आर टंग रोलर। दोनों कौन है, टंग रोलर है, मीन्स दोनों कैसे करते हैं, अपनी टंग को रोल करते हैं। ओके, ऑफ द 3 चिल्ड्रन बोर्न 2 कैन रोल द टंग एंड 1 कैन नॉट। 2 रोल कर सकते हैं, मीन्स ये जो पर्सन है ये रोल करते हैं अपनी टंग को, ये दोनों पर्सन, पर ये जो लड़की है ये रोल नहीं करती है, रोल नहीं कर सकती है अपनी टंग को। ओके, सो and the recessive trait, that is the smaller of non-rolling, is one of the children could have come from no here else but the parents. The non-roller child in the family chart with genotype is smaller must have received one smaller gene from one parents and one smaller gene from the other parents. ये जो smaller है ये दोनों parents से मिला है। ओके, तो कंक्लूजन इज दैट ईच ऑफ 2 पेरेंट्स इज हेट्रोजाइगस। दोनों पेरेंट्स कौन है, हेट्रोजाइगस है। ओके, इफ वन ऑफ द अदर हैंड वन पेरेंट्स वॉज होमोजाइगस। ओके, अगर इनमें से कोई भी एक होमोजाइगस होता मीन्स सिमिलर पेयर वाला आर, तो डोमिनेंट, और जो दूसरा हेट्रोजाइगस है, ओके, जो डिसिमिलर पेयर है कैपिटल आर स्मॉल आर, वो डोमिनेंट होता, देन एवरी चाइल्ड वुड हैव गॉट एटलीस्ट 1 डोमिनेंट जीन फ्रॉम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो हर चाइल्ड के पास एक हेट्रोजाइगस जो डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, उनमें से 1 जीन आता। ओके, नेक्स्ट हमारा पेरेंट्स थ्रू द सेक्स सेल्स द सिचुएशन कैन बी सिमेट्रिकली एक्सप्लेन एज गिवन इन अ पुनीट स्क्वायर। नाउ व्हाट इज़ पुनीट स्क्वायर? पुनीट स्क्वायर एक सिंपल डायग्राम है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेक्स सेल्स को of female parent are placed along one side of the square and those of other male. ओके, एक तरफ फीमेल पेरेंट रहती है यहाँ पर और एक तरफ मेल पेरेंट रहता है यहाँ पर इस तरफ। ओके, दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं। देन द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जीनोटाइप ऑफ द अपोजिट गैमीट्स आर गिवन टू सब स्क्वायर। द रिजल्टिंग फिनोटाइप कैन बी रिटन अंडर द जीनोटाइप। ओके, लेट मी टेल यू हाउ डू वी रिकॉग्नाइज इट। लेट्स सपोज दिस इज़ द मेल पेरेंट। ओके, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर मेल पेरेंट होता है और यहाँ पर फीमेल पेरेंट होता है। वेट, दोबारा बनाते हैं, सॉरी। छोटा सा बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, जिससे आप लोग को बस समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो पेरेंट होता है वो मेल होता है एंड हेयर द पेरेंट विल बी फीमेल। दिस इज एफ। ओके, सो हम होमोजाइगस टंग रोलर का ले रहे थे ना, आई थिंक होमोजाइगस का, या होमोजाइगस टंग रोलर का। ओके, तो दोनों कौन से होंगे, कैपिटल आर होगा। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फीमेल है उसके पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर, 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ओके, सो 1 आर यहाँ आएगी एंड 1 आर यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 1 आर यहाँ आएगा और इसका फीमेल का 1 आर इधर जाएगा। तो क्या होगा, ये कैपिटल आर and this small r, this both contribute and make the कैपिटल आर जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। इसी तरह यहाँ पे कैपिटल आर आएगा और इधर से भी कैपिटल आर आएगा, isn't it? That's why this will be homozygous.
ओके, बट यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी आर आएगी, स्मॉल आर एंड सॉरी यहाँ पे नो 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 यहाँ पे यहाँ पे कैपिटल आर आएगी एंड यहाँ पर स्मॉल आर। ये हो गया हमारा हेट्रोजाइगस एंड सेम हेयर होगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये भी हमारा हेट्रोजाइगस होगा। तो ऊपर वाले जो दोनों हैं होमोजाइगस है, नीचे वाले दोनों हेट्रोजाइगस है। यही हमारा होता है पुनीच स्क्वायर। ओके, सो इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 50% हमारी कौन है, होमोजाइगस है और 50% हमारे हेट्रोजाइगस है, दोनों 50-50% होते हैं। ओके, सो दिस इज द स्क्वायर, दिस कैन बी asked in your question, asked in your examinations, so I hope this is clear to you. Okay, so इस तरीके से आंसर आता है इसका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारा डोमिनेंट एंड रेसेसिव फॉर्म ऑफ सम कॉमन हेरिडिटी ट्रेड इन ह्यूमंस। ये डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड है। ओके, आई कलर जैसे कि डोमिनेंट ट्रेड ब्राउन एंड रेसेसिव ट्रेड में क्या होता है, ब्लू। ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। ओके, यू कैन study by yourself. Okay, now next is sex linked inheritance. Sorry children, this speech is little in a horizontal way. Okay, so sex linked inheritance क्या होता है, it is the appearance of a trait which is due to the presence of an allele exclusive either on the X chromosomes or on the Y chromosomes. ये क्या होता है, alleles जिस भी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होगी, या तो वो एक्स पे या वाई पे। ओके, उसी का जो ट्रेड है उसे अपीयर करेगी और इसे हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। ओके, लाइक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, सपोज सर्टेन डिसऑर्डर होते हैं हमारे हेरिडिटी के थ्रू, जैसे कि हीमोफीलिया ब्लड की कमी। ओके, ब्लड की कमी होता है एंड कलर ब्लाइंडनेस आर मोर कॉमन इन मेल्स एंड फीमेल्स। दोनों मेल्स और फीमेल्स में बहुत कॉमन डिजीज होती हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। दिस कैन बी द क्वेश्चन ओके इन योर एग्जाम, दैट 2 diseases caused by the X-linked inheritance. Okay, so caused by the heredity, not X-linked. 2 disorder caused by the heredity are the hemophilia and the color blindness. तो ये किस में होता है, मेल्स में होता है, फीमेल से ज़्यादा मेल्स में बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं होने के। सच डिफीट्स आर ड्यू टू रेसेसिव जीन, किसकी वजह से होता है, ये रेसेसिव जीन की वजह से होता है, विच अकर ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। किस पर कौन से क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम पर। ओके, जो हमारी कलर ब्लाइंडनेस होती है वो हमारी जेनेटिक डिजीज़ होती है, मेन जीन से होती है। ओके, I can't remember the name, but the fellow, she was having this disease. Okay, a girl fellow, I think, actually I forgot. If I remember, so I've told you. Okay, I think Queen Victoria. Yeah, Queen Victoria was having this disease. Queen Victoria was having this disease. Okay, color blindness. क्यों ये डिजीज़ थी, क्यों क्वीन विक्टोरिया को, क्योंकि उनके जीन में ये डिजीज़ थी। मीन्स उनकी जो एंसेस्टर्स थे, उनकी मदर, उनमें ये डिजीज़ पाई गई थी, इसलिए उनमें भी थी। तो ये क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ होती है। ओके, सो color blindness in an inheritance disease due to which affect individuals cannot differentiate between the certain colors, mostly red and green. कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, मोस्टली जो ग्रीन और रेड कलर होता है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। मीन्स उसे ग्रीन रेड दिखेगा, रेड ग्रीन दिखेगा। ओके, एंड जो मैं इफ़ यू कैन सी दैम यू आर नॉर्मल, अदरवाइज कलर ब्लाइंडनेस एज इन फोर्थ सर्कल। मीन्स अगर आप उन दोनों कलर्स में ब्लाइंड मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो यू आर नॉट हैविंग दैट डिजीज, बट इफ़ यू कांट सो यू आर हैविंग दैट डिजीज़।